سامنے پیڑ دیکھ رہے ہیں، اس کو مولا علی سرکار نے لگایا تھا اس وقت پہ، اور یہ آج بھی موجود ہے یہاں پہ، اور عقیدت مند زیارت کرنے آتے ہیں، اور آپ بھی خوش نصیب ہے جس نے زیارت کی تھی ماشاء اللہ سے۔ سکتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے قدم مبارک کے، میرا فوٹو بھیج دیا دیکھ کے۔ اگلے مقام کی طرف بڑھ رہے ہیں ابھی، جو زیارت کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے مارکیٹ ہے، دیکھ سکتے ہیں ساری اینٹیک چیزیں موجود ہے یہاں پہ۔ اسٹونز اور جویلری کا مارکیٹ ہے یہاں پہ۔ ابھی ہم آ گئے یہاں پہ اسٹونس لینے کے لیے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ہم لوگوں نے آلریڈی 10 فیروزہ لے لیا، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اور بھی۔ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی بڑی رنگز بنائی یہاں پہ، اور یہ پوری شاپس کے اندر سب سے زیادہ کوئی اسٹون دیکھنے ملیں گے تو سب فیروزہ ہی ہے۔ یہ عقیقے، یہ امنی ہے، سلیمانی ہے، حسینی عقیقے، سب چیزیں۔ شاپ تو بہت وی آئی پی ہے، اور یہ وہ فیروزہ کا اسٹون آتا ہے، اس کو تراش کے لوگ بناتے ہیں، یہ ان کی ہی مشین ہے، اور یہ کٹر مشین سے یہاں پر لوگ بناتے ہیں، یہ سب فیروزہ اسٹون ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ یہ افریقن گروپ، سلام سلام۔ یہ سائڈ پہ جو بھی آپ فیروزہ دیکھ رہے ہیں سب ہینڈ میڈ ہے، یہ فریم، یہ فریم فور کی بچہ۔ دیٹ mirror how much؟ ہاں 25 million، 25,000 انڈین۔ یہ فیروزہ ایسے بنائے ہوئے ہیں۔ بالکل اچھے بنے، یہ جو بھی آپ فریمز دیکھ رہے ہیں سارے ہینڈ میڈ ہے، اور بہت خوبصورت ہے۔ سورہ، آیت وغیرہ سب لکھی ہوئی ہے۔ والا یہ ہاتھ، یہ دیکھو یہ ہاتھ سے بنا ہے، مشین یہ ہاتھ سے بنا ہے، 800 یہ ہاتھ سے بنا ہے، یہ چھوٹا یہ دیکھو، یہ 4,50,000 اور یہ 4 جیسے میوزیمز ہوتے ہیں ویسے بہترین چیز یہاں پہ آپ کو دیکھنے ملیں گی۔ کون سی؟
امت نے یوں ستایا ہے، قتل محسن پہ بھی رلایا ہے، تجھ کو بابا کے بعد امت نے آئے دربار میں رلایا ہے، یا زہرا یا امت نے یوں ستایا ہے، قتل محسن پہ بھی رلایا ہے، تجھ کو بابا کے بعد امت نے آئے دربار میں بلایا ہے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا، میں تیری شبی بن کر، اپنے نوحہ کی زندگی بن کر، تیرا بچپن ہے سکینہ بی بی، اور جوانی ہے زینب مجتر، یا زہرا یا زہرا۔ یہ جو کار سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ غلط جگہ اتر گئے اور اس کے تھوڑا سلیپ ہو گئے یہاں سے، اور یہ ہم جس مقام پہ جا رہے ہیں مقام چشمہ ہے، امام علی رضا علیہ السلام کے ہاتھوں سے جو چشمہ ظاہر ہوا تھا، ہم وہاں جا رہے ہیں، آپ کو وہاں لے کے جائیں گے۔ یہ ہوٹل ہے اسٹارٹنگ میں اور مارکیٹ سے۔ سنی نے پڑھ لے ہو میرے سے میر نے، یہ فیروزہ جویلری شاپ ہے یہاں پہ، مصیبت کیسے محسن سینے میں آتی ہے تیری زہرا پہ مصیبت بڑی ہے، ہے یہ حالت کمانے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ کریے وہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امام رضا علیہ السلام لا الہ الا اللہ حزنی فمن دخل حزنی امانا من عذابی بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دین کے بعد ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لائے، اور مدینہ کے بعد میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے کوفے کو آباد کیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے کربلا وجود میں آئی، جہاں آج کروڑوں کی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد 7ویں امام اور 9ویں امام آزمین میں ہیں، اور 10ویں امام، 11ویں امام اور 12ویں امام کا سرداب
सामरा में यानी ये सब के सब अरब के अंदर थे। अरब के बाहर निकलने के बाद जो हिस्सा आता है वो ईरान का है, जिसे अजम कहा जाता था। दूसरे खिलाफत में ईरान फतह हुआ था और उसके बाद ईरान के अंदर तबलीग दीन शुरू हुआ। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम 8वें इमाम हैं, 10वें मासूम हैं। आपकी विलादत 148 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हुई। उसके बाद वो टाइम था जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अपने वालिद बुजुर्गवार हज़रत इमाम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ रहे। हारून रशीद का दौर आया 170 हिजरी में। हारून रशीद खलीफा बना और उसने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इमाम मूसा अलैहिस्सलाम को जहर दे के शहीद करा दिया। शहीद करने के बाद 183 हिजरी में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बाकायदा बज़ाहिर इमाम रहे और वो दौर हारून रशीद का ख़त्म हुआ 193 हिजरी में। उसके दो बेटे थे, एक अमीन अब्बासी और एक मामून रशीद अब्बासी। मामून रशीद बड़ा था और अमीन जो था वो छोटा था। अमीन की वालदा का नाम ज़ुबैदा खातून था। जो लोग हज पे गए होंगे, उम्रे पे गए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि उसने एक नहर वहाँ तामीर कराई थी, क्योंकि वो बनी अब्बास से उसकी माँ थी ज़ुबैदा खातून। लिहाजा जो अरब का इलाका था वो हारून रशीद ने अपनी ज़िंदगी में अमीन अब्बासी के सुपुर्द कर दिया था और जो अजम का इलाका था वो मामून रशीद के सुपुर्द कर दिया था। और खाना काबा के अंदर इस बात का ऐलान करते हुए एक एलानिया वहाँ पर लगा दिया गया था कि भाई ये रहेगा। लेकिन जो अमीन अब्बासी था वो अच्छा किरदार का नहीं था दुनिया के हिसाब से। दुश्मनान अहले बैत तो सभी थे, लिहाजा उसकी और मामून रशीद की तकरार चली। उसके नतीजे में 198 हिजरी में मामून रशीद बाकायदा खलीफा बना। जब मामून रशीद खलीफा बना तो अब्बासी ख़ानदान के जो लोग थे वो मामून रशीद के ख़िलाफ़ हुए और जो अरब लोग थे वो ख़िलाफ़ हुए कि एक ऐसा शख्स खलीफा बन गया है जिसकी माँ का सिलसिला अजम से है, ईरान से है। लिहाजा हालात बिगड़ना शुरू हुए। यमन में, अरब में, दूसरे मकामात के ऊपर उसको कंट्रोल करने के लिए तारीख़ के हिसाब से मामून रशीद ने यह सोचा कि वो कमज़ोर पड़ रहा है, तो उसने फिर वही सहारा लिया जो कि बनी अब्बास की हुकूमत में शुरू हुआ था। इमाम अलैहिस्सलाम के खून का बदला लेंगे, फिदक को वापस किया जाएगा, ये सब। लिहाजा उसने उस वक्त ये सोचा कि अब मुझे अपनी हुकूमत मुस्तहकम करना है, तो खानवादे रसूल के सिलसिले के जो इमाम हैं उनको मैं अपने साथ जोड़ लूँ। लिहाजा उसने पहले ऐलान किया कि मैं चाहता हूँ कि खिलाफत के असली वारिस इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हैं, लिहाजा उनको खलीफा में बनाऊँ। और ये ऐलान करने के बाद में उसने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को मदीने से बुलावा भेजा, क्योंकि उसकी हुकूमत खुरासान में थी। खुरासान का मरकज़ ये इलाका था। लिहाजा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को कहा गया कि वहाँ से आए, लेकिन इमाम जानते थे, इमाम अली रज़ा जानते थे कि इसकी नीयत क्या है। उनको मालूम था कि ये इस बहाने से अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करना चाहता है, लिहाजा वो आने को तैयार नहीं थे। ज़ोर डाला गया हुकूमत की तरफ से और उनको एक तरीके से बिलजब्र वहाँ से बुलाया गया। जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए हैं तो अहले बैत अतहार में बनी हाशिम में कोहराम बरपा था और इस तरीके से लोग समझ रहे थे कि अब ये आखिरी दीदार इनका है। तमाम इलाके में रोना पीटना और बुका मातम था। लोग मदीने से बाहर तक छोड़ने गए। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की आमद 200 हिजरी में इस तरफ हुई और इस तरीके से इमाम को लाया गया था कि जो सही रास्ता था उस रास्ते से नहीं, बल्कि दूसरे रास्तों से लाया गया था, ताकि लोगों को ये ना मालूम हो कि इमाम रज़ा को बुलाया जा रहा है। जहाँ जहाँ लोगों को मालूम होता था कि इमाम रज़ा जा रहे हैं, वहाँ पहले से लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। लिहाजा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को यहाँ पर इस रास्ते से ले जाया जा रहा था जो निशापुर का इलाका है।
इस नेशापुर में आपने देखा भी, नेशापुर में उमर ख़य्याम की कब्र है, दूसरे हैं, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन थे यहाँ पर। अहले सुन्नत का मरकज़ था नेशापुर। कुम शियों का मरकज़ रहा है और नेशापुर जो था वो अहले सुन्नत का मरकज़ रहा है। जब यहाँ का बादशाह शिया हुआ अल्लामा हिल्ली की वजह से, वो अलग एक तारीख़ है। उसके बाद में नेशापुर में भी शियत की तबलीग हुई और यहाँ पर बड़े बड़े उलमा यहाँ पर गुजरे हैं। लिहाजा इस इलाके में जब निकले तो सुनसान इलाका था, यहाँ कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं था। इस पहाड़ी की तरफ से जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम निकल रहे थे तो यहाँ के लोगों को मालूम हुआ, क्योंकि लोग उलमा कराम थे, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ जमा हो गए कि दीदार करेंगे इमाम का, रसूलुल्लाह की औलाद का। इस मुकाम पर जब आए तो आने के बाद में लोगों का एक इज्तिमाम था। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पालकी में बैठे हुए थे और अपने चेहरे के ऊपर नकाब भी डाल रखी थी। मकाम देखा जब ठीक था, लोगों जमा हो गए कि हम ज़ियारत करना चाहते हैं, यमना रसूलुल्लाह, हम आपकी ज़ियारत करना चाहते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपना सर बाहर निकाला, एक मरतबा नकाब उल्टी। जैसी नकाब उल्टी तो लोगों का रोना पीटना शुरू हो गया, एक कोहराम शुरू हो गया और उनको ऐसा महसूस होने लगा जैसे रसूलुल्लाह के दीदार कर रहे हों। कलमदान लिए हुए, कलम और दवात कागज़ लिए हुए लोग खड़े थे और उन लोगों ने कहा कि या यमना रसूलुल्लाह, कोई हदीस हमें आप बताइए। जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये मरकज़ था दीन का, इल्म का, ये हदीस से बाखबर थे। सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिज़ी, जितनी भी किताबें हैं दूसरी हदीस की सब मालूम थी। लिहाजा इनकी नीयत ये थी कि कोई ऐसी हदीस इमाम बताएं जो अब तक हमने न सुनी हो। अगर सुनी हुई थी तो कोई इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। लिहाजा इमाम से जब कहा गया कि हम कोई हदीस आपकी ज़बान से सुनना चाहते हैं, वो दौर था, आप समझिए कि सही बुखारी में इमाम बुखारी ने, मोहम्मद इस्माइल ने 4 लाख हदीसें जमा की। उन 4 लाख हदीसों में से 3,60,000 हदीसों को उन्होंने अपने आप रद्द कर दिया और 40,000 हदीसें जमा की, जिसको कहा गया सही बुखारी, यानी सही रिवायतें। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का वो दौर था, लेकिन सही बुखारी में कोई हदीस इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब नहीं है। और ऐसी हदीसें मौजूद हैं कि अगर मक्के की प्याज अक्के में खाएगा तो सीधा जन्नत में जाएगा। इस तरीके की रिवायतें लिखी हुई हैं। लिहाजा वो बिल्कुल बेखबर थे कि इमाम के ज़रिए कोई हदीस मिल सकती है। आपने कहा कि ठीक है, तुम कहते हो, तो इस हदीस के बारे में जो इमाम ने बयान की, जिसको मैंने शुरू में बयान किया है, उलमा का कहना है कि इससे ज़्यादा मोतबर मुस्तनद हदीस नहीं हो सकती। जो मुस्तनद हदीसें हैं, जिसके रावी कोई भी रिवायत है तो यह है कि हमने उससे सुना, हमने उससे सुना, हमने उससे सुना, उसने रसूलुल्लाह सुना। मोतबर रिवायात में, मुस्तनद में जो हदीस हैं, उनमें से एक ही हदीस है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अपने वालिद इमाम मूसा काज़िम से, उन्होंने अपने बाप इमाम जाफर सादिक से, उन्होंने अपने बाप इमाम मोहम्मद बाक़िर से, उन्होंने अपने बाप इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, उन्होंने अपने वालिद इमाम हुसैन से, उन्होंने अपने भाई इमाम हसन हज़रत अली से, जनाब फ़ातिमा ज़हरा से, और जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने अपने वालिद से, और इमाम अली ने अपने ससुर से, अपने चचेरे भाई से रसूल खुदा से सुना। तो ये वो मोतबर रवायत है, रावी हैं कि जिसमें कोई भी ऐसा नहीं है, सब के सब सच्चे हैं। ये सादिक आले मोहम्मद हैं, सादिकीन आले मोहम्मद हैं। फरमाया कि कलमा ला इलाहा इल्ला हिज़्नी, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा जो है ये एक ख़जाना है, ये किला है। फमन दखला हिज़्नी, इस किले में जो दाखिल हो गया, अमाना मिन अज़ाबी, वो अज़ाब से अमान में है, अज़ाब उसके ऊपर नहीं आ सकता। ये लिखा लोगों ने, और ऐसे कलम से लिखा जो कलम सोने के थे और सोने के हरूफ से लिखा गया। इसके बाद लोग खुश हुआ है कि खाली ला इलाहा इल्लल्लाह से काम चल जाएगा। इमाम की सवारी कुछ आगे बढ़ी कि फिर इमाम ने कहा सवारी रोको, और रोकने के बाद में एक मरतबा फिर कहा कि वह शर्तिहा व शुरूतिहा, उस शर्तों के साथ में जो मैंने कहा कि कलमा ला इलाहा इल्ला हिज़्नी फमन दखला हिज़्नी अमन मिन अज़ाबी, और उसके बाद शर्तिहा व शुरूतिहा, कुछ शर्तें हैं।
और उसके बाद अना मिन शुरूतिहा, तो उन शराइत में से एक शर्त मैं भी हूँ, यानी उन शर्तों में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह ज़रूरी है, विलायत है, अली वलील्लाह ज़रूरी है, और हम अहले बैत की मोहब्बत ज़रूरी है। अगर हम अहले बैत की मोहब्बत शर्त करार दी गई है जन्नत में दाखिले के लिए, किले के अंदर दाखिले के लिए जो जन्नत का किला है, लिहाजा मैं भी उसमें से एक हूँ। ये सुनना था कि लोग दहाड़े मार मार के रोने लगे, और उसके बाद इमाम की सवारी कुछ आगे बढ़ी कि उनके साथ में जो यहाँ का कबीला था उसके लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि यब्ना रसूलुल्लाह, ज़ोहर का टाइम हो रहा है, ज़वाल का टाइम हो रहा है, कहें तो नमाज अदा की जाए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल साफ़ सुथरा इलाका नहीं था, कोई पानी का ज़रिया नहीं था। तो इमाम ने कहा कि बेहतरीन बात आपने कही है, बिल्कुल नमाज होना चाहिए, क़याम किया जाए। अब जब क़याम किया गया तो यहाँ पर पानी का कोई ज़रिया नहीं था। लोगों ने कहा वज़ू कैसे किया जाएगा, क्या हम तयम्मुम करें? तो इमाम ने कहा नहीं, हमारे साथ में आओ। और उसके बाद में कहा कि ज़मीन को साफ़ करो। साफ़ करने के बाद में कहा नीचे से थोड़ा सा खोलो। उसके बाद इमाम करीब में गए, इमाम ने अपने हाथ से एक पत्थर था उसे हटाया। जैसे ही उस पत्थर को हटाया, वहाँ से पानी का फव्वारा जारी हो गया, चश्मा बुलंद हो गया। ये वो मकाम है कि जहाँ पर इमाम ने आने के बाद खुद खड़े होके यहाँ पर पत्थर हटाया था, यहाँ से नीचे आप जाके देखा होगा चश्मा जारी है, ये वो जगह है। तो यहाँ पर इमाम ने अपने हाथ से नमाज ज़ुहर अदा करने के लिए वुज़ू के वास्ते पानी की ज़रूरत थी, तो इसको हटाया और यहाँ पे 1247 यानी करीब 1250 साल हो गए हैं, ये चश्मा आज भी जारी है। और इसी चश्मे से पानी यहाँ से निकलने के बाद में नेशापुर में जाता है और सब लोग उससे फैज़याब होते हैं। और इस पानी का यह है कि अभी आगे भी जाने का इसका वो, तो जिस तरीके से मक्का मुअज़्ज़मा में जनाब इस्माइल की कदमों की रगड़ से जो आब ज़मज़म जारी हुआ और आज भी जारी है, उसी की पैरवी करते हुए इमाम ने जब अपने हाथ से यहाँ पाया, यहाँ चश्मा जारी हुआ। तो ये चश्मा उसकी निशानी है जो वहाँ पर आब ज़मज़म का कुआं है। इस पानी से लोग फैज़याब होते हैं। ये सामने कतबा लिखा हुआ है, इसमें आपको बताएंगे इस बारे में बयान किया। वो चश्मे नीचे है। जो सामने पेड़ देख रहे हैं, इसको मौला अली सरकार ने लगाया था उस वक्त पे, और ये आज भी मौजूद है यहाँ पे। और अकीदतमंद ज़ियारत करने आते हैं, और आप भी खुश नसीब है जिसने ज़ियारत की थी माशाल्लाह से। कदम मुबारक है के बाद में भी हम जो आपको दूसरी ज़ियारत करवा रहे हैं वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की कदम मुबारक है। चलिए अभी आपको बताते हैं। आप ज़ियारत कर सकते हैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की कदम मुबारक की। मेरा फोटो भेज दिया देख के। फाइनली अभी हमारा सफ़र होने के बाद में हम उतर गए, मशहद में आ गए। होटल पे जाएंगे, उसके बाद में हम जाएंगे